नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस है उनको डिज़ाइन कैसे किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मेंशन्ड what type of rights are given to the various organizations, like we have three organs are there in our country: legislature, judiciary and executive. These three organs, how these organs work, their design is where constitution is not a manuscript, it is a living document. Every damn information is provided by this organization. So one of the main task is सरकार जो हमारी है वो कैसे काम करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर democratic form of government. How the democratic system works, it is their working is mentioned in the constitution. It dealing with the scope of activity of various organs of the government. Like as I told you earlier, we have three organs are there: legislature, its aim to make laws for the country; executives, it aims to execute the laws of the country; and judiciary, it sees that if the law is made and law is executed is there for the favor of the people. So these organs check maintain the process of checks and balances. इसका मतलब हर एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक और बैलेंस करता रहता है। जैसे एग्जीक्यूटिव मीन्स द गवर्नमेंट, द करंट गवर्नमेंट इज़ वर्किंग। करंट गवर्नमेंट कहाँ पे बिल पास करवाती है? पार्लियामेंट में। बिल यही रखते हैं और बिल यहाँ लॉ मेकिंग बॉडी में पास होता है। तो यहाँ पे अपोजिशन मेंबर होता है, ये इनके एक्टिविटीज़ को चेक्स एंड बैलेंस करता रहता है। आपने पार्लियामेंट में अपोजिशन मेंबर को चिखते चिल्लाते सुना होगा। बेसिकली दे आर अपोजिंग दोज थिंग्स विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फेवर ऑफ द पीपल। इफ़ एनी ऑर्गन्स, इफ द सपोज बिल पास हो गया और बिल लोगों के फेवर का नहीं है, किसी ने उठा के कोर्ट में लगा दिया कि बिल के कारण हमको तकलीफ हो रही है, then judiciary will take action according to it as well. Judiciary also maintains the system of checks and balances. So three organs keep a watch on each other. Each are having equal power and they are independent. Judiciary is independent to check the process. So that procedure is mentioned in our constitution as well. According to the constitution, the government must work for the people. Ultimately, we have made the constitution in definitely beginning line. It suggests that we the people of India. So constitution, according to the constitution, the government जो भी हम बना रहे हैं वो किसके लिए काम करेगी? हमारे लिए काम करेगी। एंड नॉट द मिसयूज ऑफ पावर्स, और पावर को मिसयूज नहीं कर पाए इसके लिए कौन सा ऑर्गन है? जुडिशरी है। Powers, and so its powers are clearly defined in the constitution. What the role of government is in our country is defined in the constitution. सरकार क्या क्या काम करेगी ये constitution में mention है। The rights granted to the people are prime importance. जो अधिकार हमको मिले हैं वो सबसे सुप्रीम है, प्राइम इंपॉर्टेंस है। क्यों? In previous classes you heard about the fundamental rights that is provided by the Constitution of India. You remember about the fundamental rights: right to equality, right to freedom, then and so on. Right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. All these fundamental rights are provided by the Constitution to us, that are having prime importance. If any person or any organization will interfere our fundamental rights, we can directly go to the judiciary according to it. The constitution is a living document. ये कोई पोथी नहीं है, गीता या महागीता या फिर रामायण महाभारत की पोथी नहीं है, ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब इसमें चेंजेस हो सकते हैं, जो लिखा गया एक बार में उसको बाद में चेंज नहीं कह सकता, ऐसा नहीं है। इट कैन बी चेंजेस, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। आज हमारे टाइम है तो उसके हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा लॉ में, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज हम कैसे कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह के हो सकते हैं। कैन बी carried out by simple majority. सिंपल मेजोरिटी बोथ द हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा में इसकी सिंपल मेजोरिटी जो प्रेजेंट हो उसमें से सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद लॉ बन जाएगा। कोई ऐसा सिंपल लॉ जिसमें चेंज करना हो तो सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड, बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउस के उसको सपोर्ट करे, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद में बिल लॉ बन जाएगा। इसमें थोड़ा डिफरेंट चेंजेस आते हैं। देन थर्ड,
कोई ऐसा लॉ जो पूरी कंट्री की पॉलिसी को अफेक्ट करे, तो उस लॉ को चेंज करने के लिए क्या होगा, बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्लस 50%, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। कोई ऐसा चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में करने के लिए क्या जरूरी है, 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनका 50% से प्लस उसको अप्रूव करें, और उसके बाद रिप्रेजेंटेंट के साइन होने के बाद वो बिल को लॉ बना सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है। चेंजेस इन 3 तरीके से हो सकते हैं। दिस चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 100 से ज़्यादा बार उसमें चेंज किया जा चुका है। एज आई टोल्ड अबाउट इट, द टर्म रिपब्लिक, सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड थ्रू द चेंजेस। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में उसको चेंज करके लाया गया है। ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक किए गए हैं। These changes are there for the sake of the people.